Wait, one more, one more. This is for y'all. All that I am. All that I've been. It's a blessing. It's so amazing. I am grateful For it all. A very, very, very good morning to all of you. Welcome. Welcome back on this beautiful journey of power, where once again we discover what this power means for all of us and what it means for our lives. Welcome to the new day, to the new year, and to new beginnings in each moment, in each day. So, Drishti is here, so let's begin our book reading journey already. Hi, Drishti. Are we ready? Hello. Yes. All right. So, we are at chapter 3. We looked at again the power, the emotions, the good feelings, the bad feelings, money, health, all areas. And we will look at it deeper now. So, yes, here. From I think we Every did. single second. We'll read from here. Okay. Every single second is an opportunity to change your life because in any moment you change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistake you think you have made before. When you change the way you feel, you are on a different frequency and the law of attraction responds instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes. Do not waste one moment in regret, for to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself. Perfect. Yes. So this moment, her ek moment is just universe's gift for us. It's universe's present for us. Maybe that's why it's called present. कि इस moment पे हमारे पास chance है to change everything. ये moment पे हमारे पास chance है to transform our lives. So हर एक moment, हर एक second is an opportunity to change our life because in any moment we can change the way we feel. हम अगर इस वक्त कुछ अच्छा फील करेंगे तो सिंपली हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी. We start with this beautiful song, feeling grateful for it all. And suddenly it opens something up, it bubbles something up, in our heart. Versus the same time we choose to look at something not as good and simply we'll feel probably some heaviness in the heart. तो simply हमारा heart जैसे respond करता है situations को वैसे वैसे हमारे experience में वो चीज आती है. तो हमें लगता है बाहर की चीजें इसको impact कर रही है because हम करने दे रहे हैं. But simply अगर ये charge हम अपने हाथ में ले ले कि no matter what, my heart will feel good. So the kind of life we will be living in each moment, the kind of possibility we will be living in each moment will be just so, so phenomenal. It is said that the mind is the terrible, terrible master, but an incredible servant. अगर जब भी हम हर चीज जो दिमाग में चल रही है उसको बिलीव करने लगे लाइफ विल बी अ डिजास्टर. बट अगर वो हमसे इंस्ट्रक्शन लेने लगे वो हमारे ऑर्डर्स फुलफिल करने लगे कि मुझे ये चाहिए, मेक इट हैपन, देन इट इज द बेस्ट सर्वेंट एवर, इट इज द मोस्ट इनक्रेडिबल सर्वेंट एवर. एंड माइंड को तुम इतना प्राइडली मत लो. इट इज कॉल्ड अ गार्बेज बिन ऑफ द सोसाइटी. माइंड को अगर कोई डिस्क्राइब कर रहा है, इट्स कॉल्ड अ गार्बेज बिन ऑफ सोसाइटी. सो हमारे थॉट्स को इतना सिर पे ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है. नहीं, मैंने सोचा तो ऐसा ही है, मैंने फील किया तो ऐसा ही है. नहीं, frequency you want and वहां पे hopefully we will find some jewels and then we can probably say कि हाँ ये jewels की frequency पे हमने tap in किया and it is beautiful. So don't take our thoughts so seriously because हम जो बोलेंगे वो हमें सामने दिखाएगा और बोलेगा देखो मैंने तो बोला था. बट दिस इज अ माया नगरी. यहाँ जो बोलोगे वो दिखेगा, यहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा. सो सिंपली लेट्स स्टार्ट आस्किंग फॉर हमें क्या चाहिए. इजंट इट? तो हर मोमेंट पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू कॉल फॉरवर्ड व्हाट वी वांट इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन रिपीटिंग समथिंग दैट वी हैव बीन फॉर सो मेनी इयर्स.
तो इट डजेंट मैटर हमने पहले क्या फील किया है। अरे मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रही, अरे मेरे साथ पूरा टाइम ऐसे ही हुआ, अरे अरे बिकॉज तुम हमारे बिलीव्स थे। इट इज आवर बिलीव्स दैट आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी। हम सोच भी नहीं सकते डीप डाउन हमने अपने लिए क्या बिलीव्स रखे हैं विच आर क्रिएटिंग दीज थिंग्स रिपीटेडली फॉर अस। समवेयर इफ आई बिलीव आई एम नॉट गुड इनफ, what I will attract is not good enough things. समवेयर आई बिलीव बचपन में कुछ हुआ और मुझे लगा अच्छा मुझे खुशी ही नहीं मिलेगी, मैं वो फीलिंग चार्ट में जहां भी अनहैप्पीनेस है वहीं पे अटक जाऊंगी और बोलूंगी देखा मैंने तो बोला था मेरे को तो खुशी ही नहीं मिलेगी। अरे बिकॉज तुमने माना, तुमने वहीं अटक गए, तुमने वही पकड़ के रखा, इसीलिए नहीं मिल रही है। हर एरिया में हर स्पेक्ट्रम है, डिपेंडिंग ऑन हमारे क्या इम्प्रिंट्स है, हमारे क्या संस्कार है, वो चीज हमें मिलेगी क्योंकि वो चीज की तरफ हम देखेंगे। लाइक देर इज अ कॉइन, उसमें हेड्स भी है और टेल्स भी है। विदाउट द हेड्स एंड टेल्स कॉइन विल नॉट बी देयर। मेरे हाथ पे ये साइड भी है और ये साइड भी है, विदाउट द साइड ये साइड नहीं होगी। ये वर्ल्ड में नर्चरिंग फीलिंग्स भी है एंड नॉन नर्चरिंग फीलिंग्स भी है। इधर गुड भी है, इविल भी है, यहाँ यिन भी है, यांग भी है। इसको निकलना नहीं है मुझे ये एक्सपीरियंस करने को, मुझे सिर्फ इधर ध्यान देना है तो मेरे एक्सपीरियंस में ये आएगा। ये दुनिया में कुछ भी बदलना नहीं है, बस हमारा ध्यान जहां जाएगा वो हमारा एक्सपीरियंस बनेगा। So it doesn't matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you are on a different frequency and the law of attraction responds instantaneously. तो मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ऐसा हुआ, मैंने ये गलती की। अगर हम उसी में फंसे रहे, उसी में फंसे रहे, तो वही चीज को इतना बड़ा स्नोबॉल कर देंगे तब तक जब तक अपनी पूरी लाइफ उससे डिफाइन नहीं हो जाती। बट हर विजडम में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है जिसमें सिर्फ एक साइड है। ऐसे कोई अगर हमने उसकी गलत साइड पकड़ी है तो हमें वो मिस्टेक लग रही है। जब हम उसकी दूसरी साइड देखेंगे हम उसमें जो विजडम है वो देखेंगे। सो लाइफ में ऐसा एक भी हम ड्यूअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हर चीज द वर्स्ट ऑफ थिंग्स यू कैन इमेजिन उसका भी एक अच्छा साइड है। सो तुम जो साइड के लिए देखोगे, जो साइड पे देखोगे, तुम्हें वो एक्सपीरियंस आएगा। तो अगर हम ये फ्रीक्वेंसी पे है तो जो गलत है वही दिखेगा, बट सिंपली मैंने इधर से ये फ्रीक्वेंसी पे है तो यहाँ पे जो सही है वो दिखेगा। बिकॉज दोनों पहलू है, हम जो देखने निकले हैं हमें वो मिलेगा। एंड इमेजिन द पावर ऑफ इट, इमेजिन द पावर ऑफ आवर बिलीव्स, आवर नजर, आवर इंटेंशन, कि the moment we change the way we feel, the past has gone, you know and past कहाँ है, past कहाँ है, मेरे साथ ऐसा हुआ, so what I'm feeling is heaviness। मेरा पास्ट वो हेवीनेस में, वो सैडनेस में अटका है। So the moment I drop that, suddenly I am free of that past, the past has gone। मैं वो जेल से छूट गई हूँ और थैंकफुली कुछ नया क्रिएट होगा। पास्ट रिपीट नहीं होता जाएगा, नहीं होता जाएगा। So when we change the, इस जस्ट चेंजिंग द फीलिंग में इतना पावर है कि हमारा पास्ट भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड जब हमने रिपीटेडली देखा है, व्हेन वी स्टार्ट चेंजिंग द वे वी फील, आवर लाइफ चेंजेस, हमारी दुनिया बदलती है। सो एक भी मोमेंट कोई भी चीज का रिग्रेट का कारण ही नहीं है, बिकॉज हर सिचुएशन इज एक्चुअली एनरिचिंग आवर लाइफ। हर मिस्टेक जो भी हम समझ रहे इज एनरिचिंग आवर लाइफ। वी फाउंड वन मोर वे टू नॉट डू इट, और उसमें से जो विजडम अगर हमने देखने लगी तो वहां से द बिगेस्ट विजडम इज अवेलेबल। Wound is from where the light enters। So for to think feelingly of the mistake of the past is to reinfect yourself। ये हमने repeatedly देखा है। अगर मुझे wound है उसको मैं रोज खुरेदती रहूं, एक छोटा wound is enough to infect my whole life। जो हम unconsciously करे जा रहे हैं, अरे ये गलती हो गई, ये गलती, अरे नहीं भाई, तुमने उसको बोल बोल के राई का पहाड़ बनाया है। So सिंपली नजरिया बदलना है, जिंदगी बदल जाती है, पास्ट बदल जाता है, हम बदल जाता है और नया फ्यूचर आने की संभावना रहती है। बेनामासी, आई सॉ यू रेज्ड योर हैंड, यू वांट टू कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? एक सेकेंड। पहले जो तुम्हें समझाया था ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो थोड़ा वापस रिवाइज। कौन सा? द माइंड इज द गार्बेज बिन वाला? हाँ हाँ, अभी जो समझाया ना वो समझ में आया। उसके पहले जो समझाया था ना, जो पैराग्राफ, तो वो
हमें लगता है कि हमारे जो सोच है, हमारी जो सोच है, हमें जो सोच विचार आ रहे हैं वो हमारे हैं, वो हमारे नहीं है। कल हमने चैप्टर में देखा कि हम एक प्रोग्राम हो गए हैं। 95% ऑफ हमारी जो जिंदगी है वो एक रेपिटेटिव प्रोग्राम हो गई है। मतलब लाइक एक वो चाबी भरी हुई डॉल होती है, उसको सिर्फ चाबी भरा दो वो खुद ऐसे 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 करती है। हम भी जिंदगी में सिर्फ एक चाबी भरी हुई है, हम भी बस सिर्फ वो चाबी का इनैक्ट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि देर इज अ साइंस टू इट, के कुंडली में कुछ लिखा है और वही तुम्हारे साथ होगा। कुंडली में कुछ लिखा है वही तुम्हारे साथ होगा। व्हाट इट इज सेइंग इज लाइक इट इज सो प्रेडिक्टेबल। तुम जो हो वो इतना प्रेडिक्टेबल है कि तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही प्रेडिक्टेबल रहेगी। तुम कुछ इम्प्रिंट्स के साथ, तुम कुछ संस्कार, हम कुछ संस्कार के साथ पैदा हुए हैं। और अगर हमने वो संस्कार नहीं छोड़े तो लाइफ में यही 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 होगा। बिकॉज ये सीड से यही फ्रूट्स मिलता है। देर इज अ परफेक्ट साइंस टू इट। बट जो लोग कुंडली पढ़ते भी है ना, वो पहले हमें पूछते हैं कि आप लाइक देयर इज दिस सेइंग के स्पिरिचुअल लोगों की कुंडली नहीं पढ़ते। लाइक जो जिसने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डिलिजेंटली ली है या जो कोई इस पाथ में डीपर उतरा है, उनकी कुंडली दे से लाइक वी वोंट रीड योर्स। बिकॉज अभी फाइनली तुमने वो मशीन से, तुम ऑटोमेटिक डायलॉग से तुमने अपना पावर अपने हाथ में ले लिया है। तो अभी तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अभी ये पेपर डिस्क्राइब नहीं करेगा तुम्हारे साथ जिंदगी में क्या होगा। बट जब तक हमें पता नहीं है कि वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द को क्रिएटर्स, हमें पता नहीं है मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स, मेरे फीलिंग्स मेरी जिंदगी हर मोमेंट पे बना रहे हैं, तब तक मैं सिर्फ वो एक मशीन की तरह काम करूंगी और वही वही चीजें होंगी। तो हमारे थॉट्स भी है। अगर जब हम बुरे फीलिंग कर रहे हैं तो वील सी बुरी 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 विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तब लाइक बुरी बुरी चीजें आएंगी विच विल ब्रिंग अस मोर डिस्ट्रक्शन। सिंपली बिकॉज हम वो फ्रीक्वेंसी पे है और वो फ्रीक्वेंसी पे ये थॉट्स अवेलेबल है। पर ये थॉट्स पर्सनल नहीं है। हम जो सिचुएशन में, सराउंडिंग में जाते हैं, वैसे थॉट्स हमारे पास आते हैं। तो वो एक वो सराउंडिंग की एक फील्ड होती है जहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं उस पे टैप करके हम वो चीज लेते हैं। तो जिस दिन मैंने मान लिया कि ये जो खराब थॉट्स है वो मैं हूँ, वो मेरा विनाश भी कर देगा। वर्सेस अगर हमें वन थिंग अगेन स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। जिस दिन उसको मैंने मान लिया कि ये मैं हूं ना, मतलब इट विल गिव अस ऑल काइंड ऑफ सर्कसेस, इट विल गिव अस ऑल काइंड ऑफ स्टूपिडेस्ट थिंग्स। इसीलिए इट्स अ वर्स्ट सर्वेंट, वर्स्ट मास्टर। मतलब अगर हम इसने बोला और वो फॉलो करने लगे, इट इज एंड ऑफ अस। वर्सेस हमने इसको बोला हमें जो चाहिए, तो वो चीज वो लाके आएगा, तो वो बेस्ट सर्वेंट है। आई थिंक मुझे इसमें अभी बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बट सिंपली तुम खुद के दिमाग को इतना सीरियसली मत लो। बिकॉज उसको जो फ्रीक्वेंसी पे तुम रहोगे उस वहां की फ्रीक्वेंसी से वो चीजें लाएगा। सो अगर उसको रैंडमली छोड़ दिया तो वो रैंडमली ही कुछ कुछ करेगा। जो पास्ट है वही रिपीट करता जाएगा। और सिर्फ तुम्हारा पास्ट नहीं, हमारी 7 पीढ़ियों का पास्ट, पूरी ह्यूमैनिटी का पास्ट, हर उसके एक अंश है जो रिपीट होते जाएंगे। बट जब ये कॉन्शियस प्रोसेस बनेगी, हम वो रेपिटेशन से फ्री होते जाएंगे। जब हमने वो फ्री विल हमारे हाथ में लिया, देर इज अ सर्टन सेंस ऑफ फ्रीडम दैट विल स्टार्ट कमिंग इन कमिंग इन कमिंग इन। सो यस। थैंक यू। या दृष्टि। No excuses for the force of love. If your life is not filled with everything you love, it doesn't mean you are not a good person, good and loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to all move all the good things into their life. Think about it. One moment you give love through a warm hug with the loved ones, and then you stop giving love within minutes when you get annoyed because you can't find your keys, or you are delayed in traffic, or you can't find a parking place space. Can you scroll up? Yeah. Can you see it? I've scrolled. It's probably here on the third line. You Okay. give love. You give love when you laugh with a work colleague and then stop when you get disappointed because the local lunch place has run out of something you wanted.
You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. Give love and stop giving love. Give love and stop giving love from one moment to the next. You are either giving love and harnessing the force of love, or you are not. You can't harness the force of love with an excuse about why you didn't love. Excuses and justifying why you didn't love just adds more negativity to your life. When you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. Gautam Buddha. Yes, thank you. So, कारण बोलो, जस्टिफिकेशन बोलो, मैं सही हूँ बोलो, मेरे को तो ऐसा ही फील होना चाहिए बोलो, ये सब हमें स्टॉप कर रहे हैं टू रीचिंग टू द लाइफ वी ट्रूली डिजर्व, दिस फिनोमिनल लाइफ दैट वी आर ऑल मेंट टू लिव. उसके लिए हमें क्या रोक रहा है? वी आर गोइंग टू लुक एट इट, लाइक जो हम हर मोमेंट पे कर रहे हैं. तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं क्या करूं, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, तो मुझे ऐसा ही फील होगा ना. नहीं, देर आर नो एक्सक्यूजेज फॉर द फोर्स ऑफ लव. जो तुम खुद को सही पुरवार करने के लिए जो एक्सक्यूजेस को पकड़ के बैठे हो, जो हम एक्सक्यूजेस को पकड़ के बैठे हैं टू कीप आवर लाइफ स्मॉल, यू नो उसको लेट गो करना है, उसको जाने देना है, बिकॉज तुमने उसको पकड़ा है इसलिए वो तुम्हारे लाइफ में सही हुए. सिंपली इफ वी कैच समथिंग एल्स दैट विल मैनिफेस्ट इन आवर लाइफ. So there are no excuses for the force of love. अगर हमारी जिंदगी is not filled with everything we love, it doesn't mean we are not loving person. ये तो हम सब मानेंगे ना, अरे I'm loving, I love my kids, I love myself, I love my work, I love my family. But वहाँ होता क्या है? सब अच्छा चल रहा है तो आई लव देम, कुछ किसी ने गलत किया, अरे यार ये तो ऐसा ही है. कुछ सब अच्छा चल रहा है, अरे मस्त है. कुछ गलत किया, अरे ये तो समझते ही नहीं है, इनको तो वैल्यू ही नहीं है, मैंने इतना किया. सो सेम लाइक आई लव माई वर्क, बट यार ये कलीग है ना, उसमें बहुत चिड़चिड़ होती है, इट्स वेरी अनोइंग. तो सिंपली हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, एक स्टेप बैक, एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप बैक. अच्छा हुआ तो गुड, बुरा हुआ तो बैड, अच्छा हुआ तो गुड. एंड वो तो हर मोमेंट पे होएगा ही ना. तो इसीलिए बोल रहे हैं हम हैमस्टर ऑन अ व्हील है, हम ट्रेडमिल है, हम ट्रेडमिल पे है, हम स्टक फील कर रहे हैं, बिकॉज हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं. हम थके जा रहे हैं, हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम पूरा टाइम चल रहे हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप बैक, एक स्टेप, बट इट्स नॉट टेकिंग अस एनीवेयर. वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर. एंड मेनी अ टाइम्स इन फैक्ट हमने एक चीज अच्छी देखी और 10 चीज बुरी देखी, तो वी आर एक्चुअली गोइंग ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल. यहाँ पे अच्छा लगा पर फिर 10 कंप्लेन की. एंड रोंडा ने आई थिंक मैजिक बुक में बोला था दैट तुम एक पर्सन के लिए अगर एक कंप्लेन करते हो तो तुम्हें ये पर्सन से कनेक्टेड हो, तुमने एक कंप्लेन की तो तुम्हें वो इतना पीछे भेजेगा. अभी वापस टू कम बैक टू दिस लेवल, हमें उस पर्सन को 10 ग्रैटिट्यूड देने होंगे, दिल से फील किए हुए 10 ग्रैटिट्यूड देने होंगे, तब हम ये पर्सन के साथ वापस सेम लेवल पे आएंगे. तो दैट इज सेम फॉर द सिचुएशन ऑल्सो. एंड इमेजिन करो ये सिचुएशन है, हमने अननोइंगली कितनी कंप्लेन्स दी है वो चीज में, तो हम वो चीज से कितने मिसअलाइन हो गए हैं, यू नो और इसीलिए फिर हम एक अलग स्पाइरल में फंस जाते हैं. तो हमारा पर्पस ही हमें इस गेम में भेजा ही गया है ताकि वी कम टू लव. एक वो सुपर मारियो की गेम्स हमने खेली है, काफी गेम्स के लिए उसके हर लेवल होते हैं. प्रॉब्ली व्हेन यू कंप्लीट ऑल लेवल्स, तुमने सब पार किया. ऐसे ही ये जिंदगी के लेवल्स है. there's a level on fear, guilt, shame, irritation, satisfaction, hope. Finally हम gratitude और उसके बाद love पे आए, तो पिटिंग, the game is over. So everything is leading us to love. Everything is giving us chance and chance and chance and more chances. So we end in love. So yes, हमारा purpose ही है is to overcome negativity by choosing love. But problem is हम लव चूज करते हैं, बट फिर 100 बार हम वी एंड अप स्टॉप गिविंग लव. तो सब अच्छा हो रहा है तो खुश है, नहीं हो रहा है तो बुरा है. सो वो ट्रेडमिल पे बस चले जा रहे, थके जा रहे, बट इट इज नॉट टेकिंग अस एनीवेयर. सो ईदर वी आर हार्नेसिंग, you are either giving love and harnessing the force of love, or you are not.
You can't harness the force of love with an excuse about what you didn't love, why you didn't love. So ये लाइफ में जो ढूंढने जाओ वो मिलेगा, बोलते हैं ना ढूंढने वाले को भगवान भी मिल जाता है। तो अगर हम एक्सक्यूजेस तो हम मतलब ऐसे ढूंढ लेते हैं, राइट, इसके वजह से आई कांट लव, इसके वजह से आई कांट लव, ये ऐसा है इसके वजह से आई कांट लव। सो अगर हम एक्सक्यूज ढूंढने लगेंगे तो भरमार मिल जाएगी, अब सोच नहीं सकते, मतलब यार ये तुम्हें इतनी चीजें लाके देगा वेयर यू विल फील जस्टिफाइड के देखा ये हुआ इसलिए आई कांट लव। बट इसी को तुम दूसरा एक वो बोलो कि अच्छा अभी मुझे ढूंढ के दिखा दैट व्हाई आई कैन लव, एंड देन यू विल बी सरप्राइज्ड, द काइंड ऑफ excuses, the kind of reasons you will see to just fall in love. बट हमने बस उस सीड को इनफ प्लांटिंग वाटरिंग नहीं की है, उसको थोड़ा, ये भी एक मशीन क्रिएट हो जाएगा, हम एक मशीन की तरह काम करते हैं। तो अगर थोड़ा टाइम हमने व्हाई आई शुड लव के लिए इसको ट्रेन किया तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, होपफुली then our automatic repetitive machine will work for, oh I love this for this, oh I love this for this, I love this for this. तो सेम चीज जो हमें डिस्ट्रक्ट कर रहा है will also be the same software that will make us flourish into the most beautiful version of ourselves. So excuses and justifications for why we don't love will just add more negativity. एक गलत स्टोरी को वो रिपीट करते जाओगे तो there is no सही और गलत, तुम जो बोलो वो सही है, बट एक नॉन वर्किंग स्टोरी को हम रिपीट करते जाएंगे तो इट विल जस्ट फिल आवर लाइफ्स विद नेगेटिविटी विच वी हैव डन ऑलरेडी। बट उसको कैच करना है, उसको थैंक यू बोलना है, उसको अक्नॉलेज करना है, उसको लेट गो करना है, और हमें जो चाहिए उसके सीड्स प्लांट करने हैं। When you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. हम past repeat कर रहे हैं, हम वो इमोशंस को पकड़ पकड़ के, वो इमोशंस को हर चीज में डाल के वही इमोशन एक्सपीरियंस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, और हमारी आदत पड़ गई एक्सक्यूजेस ढूंढने की ऑफ व्हाई वी डोंट लव। हमें वो हर चीज में मिलेंगे, द बेस्ट ऑफ चीज कर लो हमें मिलेंगे। एंड जब हम बोलते हैं कि मैं तो सही हूँ, मुझे तो गुस्सा आएगा ही, मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं तो गुस्सा रहूंगी, तो व्हाट दिस एंगर इज ऑल्सो, अगर मैंने किसी और को डालने के लिए जलता हुआ कोलसा हाथ में लिया, एक कोल हाथ में लिया, और मुझे लगेगा कि मैं उसको जलाऊंगी, नहीं, उससे पहले मेरा हाथ जल जाएगा, उस तक तो शायद पहुंचे भी नहीं, बट माई हाथ विल डेफिनेटली बर्न। So it's like holding on to anger is like grasping a hot coal with an intent of throwing it at someone else, and we are getting burnt. And ये लाइफ इतनी पावरफुल है कि ये हॉट कोल जो हम सालों से पकड़े बैठे हैं काफी बार, वो अभी भी हॉट है, और वो अभी भी हमें जला रहा है, वो डिसीज ला रहा है, वो लाइफ में ब्रेकडाउन ला रहा है, वो हेल्थ चैलेंजेस ला रहा है, वो बाकी सब चैलेंजेस ला रहा है, बिकॉज हमने ये हॉट कोल्स ऑफ एंगर, हॉट कोल्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन को हर एरिया में पकड़े रखा है, जकड़े रखा है, वो सिर्फ हमें डिस्ट्रॉय करता है। Yeah. If you get annoyed because there was a mix up in an appointment and blame the other person for the mix up, you are using blame as an excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you are giving. So, if you are giving blame, you must receive circumstances of blame back in your life. If it won't necessarily come back to you from the person you were blaming, but most assuredly, you will receive a circumstance of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give. Period. There are no excuses for the force of love. Excuses तो हमारे लिए है, force of love तो बस देता जाएगा, जो मांगोगे वो देगा, जो दोगे वो देगा। You get what you give. Period. 4 जन को हमने ब्लेम किया, दूसरे 8 जन हमें ब्लेम करने आएंगे। 4 जन को हमने गुस्सा दिया, दूसरे 12 जन हमें गुस्सा करने आएंगे। 5 जन को हमने काइंडनेस दी तो दूसरे 50 जन हमें काइंडनेस देने आएंगे। सिंपली व्हाट वी गिव वी गेट। सिंपली ये लॉ है। लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है बिकॉज अननोइंगली हम जो अच्छा नहीं है वो दे रहे हैं, वो बदलो तो जिंदगी बदलेगी। चेंज योर फीलिंग, चेंज योर डेस्टिनी। या Every little thing is included. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity. All of them bring so much strife.
With every little complaint and every moment you criticize anything, you are giving negativity. Complaints about the weather, traffic, the government, your partner, children, parents, long lines, economy, food, your body, your work, customers, businesses, prices, noise, or service seems like small harmless things. But they bring back with them a whole host of negativity. हमने कभी कभी तो सोच लिया है कि हमारा जिम्मा ही अर्थ पे है टू बी दिस पर्सन हु इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। अरे यहाँ ये ठीक नहीं है, अरे यहाँ ये ठीक नहीं है, अरे आज गवर्नमेंट ठीक नहीं है, अरे ये पेट्रोल की प्राइस ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, लाइक हर चीज में वी आर जस्ट सो, मतलब इतना हमने खुद को वेलवर्स कर दिया है ये चीज में कि बस वही वही चले जा रहा है टू नो अवेल। एंड ये चीज ही हमारे लाइफ में स्ट्राइफ दे रही है। हम जो दूसरों को दे रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं गवर्नमेंट के लिए बोल रही हूँ, अरे गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो बोलूंगी ना। मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ, मैं एनवायरनमेंट के लिए नहीं, तुम जो भी दे रहे हो वो तुम्हें ही मिल रहा है। तो लिटरली तुम खुद के लिए ही बोल रहे हो, यूनिवर्स के लिए कोई और है ही नहीं। तो जब मैं गवर्नमेंट को बोल रही हूँ गवर्नमेंट ठीक नहीं है, मैं एक्चुअली बोल रही हूँ भूमि ठीक नहीं है। मैं जब बच्चे को बोल रही हूँ तू ठीक नहीं है, मैं बोल रही हूँ भूमि ठीक नहीं है। मैं जब बोल रही हूँ कुणाल तू ठीक नहीं है, व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज भूमि ठीक नहीं है। तो हम किसी और के बारे में नेगेटिविटी बोल रहे हैं, यूनिवर्स इज सीइंग इट एज नेगेटिविटी फॉर मी, मोर 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 नेगेटिविटी फॉर मी एंड अ स्नोबॉल इफेक्ट। तो जो भी तुम एंटाइटल फील कर रहे हैं, जो भी हम एंटाइटल फील कर रहे हैं, यहाँ तो कंप्लेन बनता है, हम सिर्फ अपनी लाइफ को चला रहे हैं। So let's catch ourselves every time we are doing it and change the frequency there to what we want and life will start changing. तो कोई भी हम बोलते हैं अरे हार्मलेस जोक था, बट देयर इज नो नथिंग हार्मलेस, वो हमें हार्म कर ही रहा है। यस। Throughout your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful, because when you say those words, they come with strong feelings. When you say them, they must return to you, which means you are putting those labels on your life. Don't you think it would be a good idea to use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful? You can have whatever you love and want, but you have to harmonize it with love. And that means there are no excuses for not giving love. Excuses and justifications prevent you from receiving everything you want. They prevent you from having an amazing life. You can have whatever you love. नहीं नहीं, अच्छा, this quote, all that we send. Oh, yeah, sorry. All that we send into the lives of others come back into our own. Edwin Markham. यस, तो जो भी हम किसी और को देंगे वो हमें मिलेगा। लव दिया तो लव मिलेगा, ब्लेसिंग्स दिया तो ब्लेसिंग्स मिलेगा, कुछ और दिया तो वो मिलेगा। तो सिंपली हम हमारे शब्दों में ही सब छुपा है, जैसे कि आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम सो मेनी पीपल कि सिंपली आई स्टार्टेड सेइंग लाइफ इज काइंड एंड इट स्टार्टेड बीइंग काइंड बिकॉज मैंने वो बोलना शुरू किया, एंड व्हेन वी थिंक आल्सो इट्स इन वर्ड्स, राइट? सो हर Sorry, I चीज have to tell you something today. I Yes. woke up and I felt kind towards myself. Whole 40 years of my life, I've never felt kind towards myself. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चेंज योर फीलिंग्स एंड चेंज योर डेस्टिनी। मजेदार। थैंक यू फॉर शेयरिंग परिधि, थैंक यू। एंड सिंपली जब हम खुद से काइंड होंगे तो वही हम दे पाएंगे दूसरे लोगों को, जो है ही नहीं वो दे ही नहीं पाएंगे। So the real life begins now. Thank you for sharing. So yes, हम जो शब्द बाहर फेंकेंगे वो हमारे पास आएगा। It's like placing an order. अगर चलते फिरते this is so terrible, this is so disgusting, so awful. Okay, चलो इसको और दो, awful दो और disgusting दो, versus अगर हम चल रहे हैं, wow, this is so fabulous, this is so beautiful, this is so kind, I am so wonderful. लाइफ इज सो गॉर्जियस। किसी को भी पकड़ो यार, किसी को भी पकड़ो और प्यार दो, इट विल कम बैक टू यू। भगवान को पकड़ो, बच्चे को पकड़ो, खुद को पकड़ो, काम को पकड़ो, हर चीज को कहीं से भी प्यार दो बस। सो अगर हमने कुछ शब्द अगर हमारी डिक्शनरी से ही निकाल दिए ना, लाइफ इज टफ, लाइफ सक्स, दिस इज बैड, तो वी विल सी जो चाहिए वो बोलने लगे। इफ वी स्टार्ट ऑल्सो यूजिंग फैबुलस, अमेजिंग, ब्रिलियंट, वो हमारी तरफ आता जाएगा, आता जाएगा।
and we can then have anything we want, हर चीज, because वो यहीं available है, बस different frequency पे है, वो frequency पे tap किया तो it is available right here, and what we seek is seeking us more with all its power, you know. But first we have to harmonize with love, we have to align, we have to open the doors for it, you know. So ये चीज is true for everything. That means there are no excuses for not giving love, and excuses and justifications prevent us from receiving everything we want. Excuses and justification in business also. Imagine a person who is always using some excuse to not deliver. You think the business will shine? नहीं, उसको हर बार हर सिचुएशन में हजार एक्सक्यूजेस मिलेंगे to see why it doesn't work. But simply उसने एक पकड़ा कि नहीं, I have to make it work. You know, that business will skyrocket. Same, हमने सिर्फ एक पकड़ा कि I have to just give love. Our life will skyrocket. पर अगर हम excuses and justification में फंस गए, तो अभी I can give 50 excuses of, you know, why something shouldn't happen, and मुझे और 500 उसके बाद मिलेंगे. Versus if I go looking for that one, that why it should, we will see that is the change of the destiny in life. So हर area में excuses and justification are preventing us from the life we deserve to live. So let's catch ourselves कहाँ हम excuses and justification में फंसे हुए हैं और हम love नहीं दे पा रहे हैं. Yeah. You don't make a connection when you complain to a store and then a few hours later you receive a call from your neighbor complaining that your dog is barking. You don't make a connection when you meet a friend for lunch and talk negatively about a mutual friend and you arrive back to work to discover big problems have developed with your major client. You don't make a connection when your diner conversation is about something negative in the news and that night you can't sleep because of an upset stomach. You don't make a connection when you stop to help someone who has dropped something in the street and 10 minutes later you get a parking space right outside the supermarket door. You don't make a connection when you have happily helped your child with their homework and the next day you receive the news that your tax refund will be bigger than you thought. You don't make a connection. Sorry. Yeah. No problem. You don't make a connection when you do a favor for a friend and the same week your boss gives you 2 complimentary tickets to sports game. In every circumstance and moment of your life, you are receiving what you have given, whether you make a connection or no. Nothing comes from without. All things come from within. Nothing comes from without. Everything comes from within. एक प्लांट कितना भी विशाल हो, कितना भी, उसके लिए वो सीड बिना आ ही नहीं सकता है. हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी अच्छी या बुरी चीज हो, उसका फर्स्ट सीड हमारे अंदर प्लांट हुआ है, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ थॉट. उसको इतना अटेंशन मिला है, उसको इतना नर्चरिंग मिला है, उसको इतना ध्यान मिला है, इसलिए आज वो इतना विशाल पेड़ हुआ है. बट हम सिर्फ बोल नहीं सकते ये पेड़ मेरी लाइफ में आ गया. नहीं, हमने इसके सीड डाले हैं और इसको नर्चर किया है, इसीलिए वो हमारे लाइफ में है. मैंने एक स्माइल कार्ड के किसी के ऊपर एक स्माइल कार्ड यूज किया, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. यू नो, मैंने एक्ट ऑफ काइंडनेस कहीं किया, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. मैंने अगर किसी को बहुत ही गुस्सा दिया तो यू नो अगेन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. इट विल गिव मी थिंग्स आई डोंट वांट इन माय लाइफ. सो सब यही का यही है, ये हम बोलते आए हैं. शायद शायद बच्चों को किया और बीवी से आया, शायद बॉस के साथ झगड़ा किया और कोई स्ट्रेंजर से आया, बट सब यही का यही है. काइंडनेस का भी इधर ही हिसाब है और नॉन काइंडनेस का भी इधर ही हिसाब है. और जो हम दे रहे हैं, हम वो कनेक्शन बना पा रहे हैं कि नहीं. बट अवेयरनेस नहीं है तो वो कनेक्शन नहीं बनेगा. बट जिस दिन अवेयरनेस आई, वी विल सी, ओ ये सोच रही हूँ इसीलिए ये हो रहा है, ओ ये मेरी धारणाएं हैं, ये मेरी मान्यताएं हैं, इसीलिए ये हो रहा है. अगर इफ आई बिलीव दैट आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ, आई विल हर सिचुएशन का बुरा क्या है वही मैं पकड़ के अपने लाइफ में बैठूंगी और वही मेरी लाइफ बनेगी. तो मेरी धारणा, मेरी मान्यता, मेरे थॉट्स ही मेरी जिंदगी बना रहे हैं. या The tipping point. If you give more than 50% positive thoughts and feelings instead of negative,
You have reached a tipping point. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. And here's the reason why. When you give love, it not only comes back to us as positive circumstances that you love, but as it comes back, it adds even more love and positivity to your life. The new positivity then attracts more positive things, adding even more love and positivity to your life. And so it continues. Everything is a magnet, and when something good comes to you, it magnetically attracts more good things. Yes. So it's a tipping point is the science now, it's the secret now, कि एक स्टेप फॉरवर्ड एक स्टेप बैक, बट अगर दो स्टेप फॉरवर्ड एंड एक स्टेप बैक लिया कहीं तो आगे बढ़े, यू नो 3 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक लिया फिर भी थोड़ा तो आगे बढ़े. तो एंड देन वंस हमने ये 3 स्टेप की आदत पड़ गई तो फिर नेक्स्ट टाइम में भी 5 लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में भी 10 लेंगे और 3 स्टेप्स बैक लेंगे. सो देन व्हाट मोर इज हैपनिंग इज गुड थिंग्स. एंड एक बार वो गुड थिंग्स आती है ना तो वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आती है. So, then we will have like a flood of good things, It's like change of feeling is change of destiny. सिर्फ एक बार वो intention set किया और उस पे काम करने लगे. If we are just being more into, good feelings, we will see the life will change. They say that show me how you spend your day and I will show you your destiny. I will show you. So अगर हम पूरे दिन चिंता में है, भय में है, तो of course हमारी लाइफ में वही दिखेगा. अगर हर मोमेंट हमारा दिन बना रहा है और हमारा हर दिन हमारी जिंदगी बना रहा है. तो सिंपली हर पावर यहाँ है, कभी कुछ होगा में नहीं है, इज इन दिस मोमेंट व्हाट आई एम फीलिंग उसमें है. बिकॉज हाउ आई एम फीलिंग दैट विल डिटर्मिन एवरीथिंग. हाउ आई एम इन अ रिलेशनशिप, हाउ आई एम इन वर्क, हाउ आई एम इन हेल्थ, हाउ आई एम इन ऑल एरिया. अगर हमने सिर्फ ये एरिया को संभाल लिया, हाउ आई एम फीलिंग, हर चीज संभल जाएगी लाइफ में. और ये कैसे होगा? इज विद दैट कमिटमेंट. दे से दैट निश्चल तत्व जीवन मुक्ति. मैंने एक तत्व को, एक फीलिंग को कमिट कर दिया तो इट विल टेक मी थ्रू एवरीथिंग फॉर टू द अल्टीमेट, पर हम हर सिचुएशन, हम हर पर्सन, हम परिस्थिति को डिटर्मिन करने देते हैं हमारे अंदर क्या होगा. then we are just a hamster on the wheel, getting nowhere and getting exhausted and feeling trapped all at once. बट ये भी हमारी ही चॉइस है और ये भी हमारी चॉइस है. हम क्या चूज करेंगे, लाइफ वही हमें देगी. तो सिंपली 51% इज इनफ, ये बैलेंस को करने को, हमारी जिंदगी को. तो प्लीज, अगर नेगेटिव फील हो रहा है, नेगेटिव इज ऑल्सो अ बिग ब्लेसिंग. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट विल टेक अस टू पॉजिटिव. तो उसको इग्नोर मत करो. अगर उसको कुछ फियर आ रहा है और उसको दबा दिया तो क्या होगा? उसका सीड बनेगा और उसका पेड़ आएगा. एंगर आया और उसको दबा दिया, नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं मेडिटेटिव हूँ, मैं नहीं, उसका एक सीड आएगा और उसका पेड़ बनेगा. उसको अक्नॉलेज करो, उसको थैंक यू बोलो कि हाँ तू आया. उसको समझो कि हाँ तू आया बिकॉज वहां पे लैक ऑफ लव है, वहां पे लाइट की जरूरत है. आई सी यू, आई फील यू, आई थैंक यू एंड आई लेट यू गो. उसको छोड़ दो. उसको दबाओगे तो भाई क्या तुम्हें फ्रूट देगा ना, मजा आ जाएगा. हमने सबने किया है, राइट? तो कुछ भी चीज को, हर चीज इज फॉर आवर गुड. हैंगर इज ऑल्सो कमिंग फॉर आवर गुड. इरिटेशन इज, उसको अक्नॉलेज करो और उसको लेट गो करो. उसको अक्नॉलेज इट, लेट इट बी देयर एंड लेट इट पास. उसको पकड़ के रखते हैं या दबा देते हैं तभी प्रॉब्लम शुरू होता है. इफ यू लेट इट गो, इट विल गो. तो अच्छी चीजें ढूंढने लगेंगे तो अच्छी चीजें और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और वो अपने साथ और बहुत 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 सारी पॉजिटिविटी लाएंगी. एंड दैट विल टिप द स्केल. जो चीज कभी नहीं हुई वो होने लगेगी. अ न्यू प्रेजेंट एंड अ न्यू फ्यूचर विल ओपन अप फॉर अस. बिकॉज हर चीज मैग्नेटिक है और जब कुछ अच्छा हमारे साथ आता है, इट विल मैग्नेटिकली अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स इन आवर लाइव्स. या You may have experienced this when you said you were having a lucky streak or you were on a roll, when one good thing after another happened and the good things just kept happening. The only reason those times occurred was because you had given out more love than negativity, and as the love returned to you, it added more love to your life, which then attracted even more good things. You may have also experienced the reverse happening when something went wrong, and then
or other things started going wrong one after the other. Those time happened because you gave more negativity than love, and as the negativity returned to you, it added more negativity to your life, which then attracted even more negative things. You may have called those times a run of bad luck, but they have nothing to do with luck at all. The law of attraction was working precisely in your life, and those times, good or bad, were simply a reflection of a percentage of love or negativity you were giving. The only reason the lucky streak or the run of bad luck changed is that at some point you tipped the scales the other way with your feelings. Yes. तो हम सबने अपने लाइफ में देखा है, एक अच्छा टाइम है जब सब अच्छा होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, सोच भी नहीं सकते वो चीजें हो रही है। एंड सेम विद बैड थिंग्स, समटाइम्स एक वो डाउनवर्ड स्पाइरल में आ गए, लाइक इट्स ऑल्सो सेम विथ लोन्स। किसी ने थोड़े पैसे उठाए, फिर थोड़े उठाए, फिर थोड़े उठाए, देन बिफोर वी नो जस्ट इन अ माउंटिंग डेट। वही सिमिलर प्रिंसिपल, बिकॉज इट्स ऑल एनर्जी। वही सिमिलर प्रिंसिपल वर्क्स इन इमोशंस, इन रिलेशनशिप्स, इन वर्क, इन हेल्थ ऑल्सो। एक कुछ बीमारी हुई, फिर और कुछ हुई, और कुछ हुई, बिफोर वी नो इट, लाइक हम उसके झांसे में आ गए हैं। सो हर चीज एक लूप में काम करती है, जो लूप में उसका सीड मिला वो बढ़ता जाएगा, अनलेस वी ब्रिंग दैट कॉन्शियसनेस, दैट अवेयरनेस, दैट यूजिंग ऑफ द फ्री विल राइट, एंड वी डिसाइड टू ब्रिंग अ चेंज, और इट नेचुरली हैपेंस। तो ये लकी स्ट्रीक और रन ऑफ बैड लक बदलता है जब वो अगेन टिपिंग स्केल बदलता है, जब अच्छा ज्यादा बढ़ जाता है देन अच्छी चीजें होगी, जब बुरा ज्यादा बढ़ जाता है तो बुरी चीजें होंगी। पर अभी द ब्यूटी इज वी रियलाइज दैट पावर इज इन दिस मोमेंट। तो अगर कुछ बुरा शुरू होने वाला है, हो रहा है, बट अगर इस मोमेंट में मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की, मैंने वो साइकिल से खुद को फ्री कर दिया, एंड नाउ आई हैव अ चॉइस टू क्रिएट व्हाट आई वांट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्री विल। सो yes, let's start catching ourselves before getting into these spirals, even the good ones, and acknowledge हाँ ये good feeling से आ रहा है, और उसको और नरिश करो, तो वो एक कॉन्शियस प्रोसेस होगा। यस। It is thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. कैसे Charles. होगी? Yes, Charles Handels. Thank you all authors and all these people for your wise words. We don't acknowledge you all enough, but thank you. So कैसे होगा? How do we live a charmed life? Be forever protected by all harm, and we may become a positive force जहाँ पे हमारे सारे conditions will be there for opulence and harmony, by simply making a choice to be on good feelings, by simply choosing, simply using this free will for us, not against us. बस हमने इसको अपने लिए यूज करना शुरू किया, राइट डिस्क्रिशन लाया, माइंड खुद करे जा रहा है, उससे हमने उसको बोला अच्छा मुझे ये चाहिए, नाउ फाइंड मी ऑल गुड थिंग्स, find me all positives, and integrate the negative, because कुछ negative है ही नहीं। yes, it is feeling painful, it is feeling dark, तो हम उसको फिलहाल, because शब्द में हर चीज हम बयान नहीं कर सकते, तो हम उसको negative बोल रहे हैं, but they are actually the wake up calls leading us to love. They are the wake up calls that are leading back to the life we deep down know we deserve. So हर चीज is serving the same purpose, हर चीज is serving that purpose. तो किसी को भी एक्सक्लूड करेंगे तो वो सुई में से हाथी निकल जाएगा, पर वो पूंछ बंध जाएगी। तो हर चीज को इंक्लूड करके इंटीग्रेट करना है, हर चीज इज सर्विंग अ पर्पस, उसको एक्नॉलेज करके, थैंक करके इंटीग्रेट करना है। एंड अगर हमने हमारे इमोशंस हमारे हाथ में ले लिए और पॉजिटिविटी की तरफ हमने टिप कर दिया, बस जो जिंदगी हम दिलो जान से चाहते हैं वो हमारे पास रहेगी। अ ब्यूटिफुल लाइफ रहेगी, प्रोटेक्टेड लाइफ रहेगी, और ऑप्युलेंस आएगा, पैसा आएगा, हार्मनी आएगी, खुशी आएगी। हमने देखा है कुछ लोग, कितनी भी बड़ी चीजें होती है, उसको बस उसको वो चीज छूती भी नहीं और उनसे निकल जाते हैं। बोलते हैं ना, राम राखे तेने कौन चाखे। like some people just feel that protection, some people just feel that love, because simply उन्होंने खुद को उस पॉजिटिविटी में बनाए रखा है, that nothing that doesn't work touches them. It is no accident, it is all science, it's all law.
So this is the tipping point, ये पलड़ा है। अभी हमने जिधर ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा ज्यादा वजन दिया, वो चीज बढ़ेगी और उस तरफ हमारी लाइफ, टिपिंग पॉइंट आएगा हमारा। Yes. To change your life, all you have to do is tip the scales by giving 51% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly, you experience an acceleration and multiplication of good things. Instead of more negative things coming back to you and multiplying, you now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way your life is supposed to be. This is the way our life is supposed to be. हमारी लाइफ ऐसे पलड़े की तरह होनी चाहिए जहाँ पे good things are just taking over, good things are just flooding us, it's just flourishing us. So और ये कैसे करेंगे? बस ज्यादा लव दे तो वो खुद खुद होगा। हमें सिर्फ फीलिंग देनी है, बाकी सब तो यूनिवर्स कर रहा है, बाकी सब तो ये फोर्स ऑफ लव कर रहा है, और ये वही कर रहा है कि तुम इधर ज्यादा फील दो, उसी के लिए कर रहा है। उसने पूरी कायनात लगा दी ताकि वी कम टू दिस। So once we reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to us multiplies itself by attracting more love. So same, एक बार ये शुरू किया तो फिर तो लाइफ में खुद ऑटो पायलट पे चीजें होने लगेंगी, where good things are just happening, and एक acceleration of multiplication of good things हम experience करेंगे। So इंस्टेड अभी तक जो नहीं चाहिए वो आ रहा था, अभी जो चाहिए वो आएगा और वो हर एरिया में आएगा। एंड दिस इज द वे आवर लाइफ इज सपोज टू बी। जहाँ पे भी हम पेन फील कर रहे हैं, बिकॉज वो हमें जगा रहा है कि हे दिस इज नॉट, यू डोंट डिजर्व दिस, you deserve something gorgeous, something beautiful. So wake up, just change your feelings and let that come to your life. When you wake up each morning, you are standing at a tipping point of your day. One way tips you into a wonderful day filled with good things, and the other way tips you into a day filled with problems. You are the one who determines what your day will be by the way that you feel. Whatever you're feeling is what you are giving, and with certainty, that is exactly what you will receive back in your days, surrounding you wherever you go. As you begin your day and you're feeling happy, while you keep feeling happy, your day will be great. But if you begin your day in a bad mood and you do nothing to change it, your day will not be great at all. One day of good feelings not only changes your day, it changes your tomorrow and your life. Provided you maintain your good feelings and you go to sleep feeling good, you begin the next day with a momentum of good feelings. As you continue to feel good as much as you can, your good feelings continue to multiply the law of attraction, and so it continues day after day, and your life gets better and better. Live today, not yesterday, not tomorrow. Just today. Inhabit your moments. Don't rent them out to tomorrow. Sherry Spinelli. Yeah, these names are very hard. All right. So thank you, Paridhi, again for bringing that aspect, and for sharing. कि अगर दिन की शुरुआत सुंदर है, दिन अच्छा जाता है, unless we do something to change it. But दिन की शुरुआत सुंदर होती है, naturally we'll see, naturally good things we'll start seeing, we'll acknowledge good things, and और मजा 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 आता जाएगा दिन में. So you are the one who determines what your day will be by the way you feel. हम जैसे फील कर रहे हैं वैसे वैसे वो डे शेप करेगा, बिकॉज हम को क्रिएटर है। वो दिन तो वो हमें जो देने वाला है वो देगा, पर अगर हम उसमें खुशी के रंग भरेंगे तो वो हमें खुश अपीयर होगा। अगर हम उसमें जो सही नहीं है उसके रंग भरेंगे तो हमें वो वैसा अपीयर होगा। सो इट इज ग्रेट दैट वी आर नेचुरली कमिंग ऑन टू द स्टेट ऑफ फीलिंग हैप्पी, बट ऑल्सो हाउ डू वी मेक इट ऑल्सो अ कॉन्शियस प्रोसेस, दैट हम दिन की शुरुआत, no matter what I am feeling, I will only jump out of the bed when I feel happy, when I have filled my heart with happiness. हमारे शास्त्र में लिखा है उठो तो पहले भगवान को याद करो। Again, what it is saying is we are connecting with that force of love or the source of love that we believe it to be. किसी के लिए वो यूनिवर्स है, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए खुद का दिल है। You see, you pick, but
अगर हम शुरुआत दिन की विद दैट सोर्स ऑफ लव, विद दैट कॉन्शियसली फ्री विल से यूज करके कि जब तक मैं खुश नहीं हूं, जब तक आई एम नॉट फीलिंग वाओ, आई विल नॉट लीव द बेड, यू नो. सो उठ के पहली 5 मिनट जस्ट फीलिंग दैट लव, जस्ट फीलिंग दैट ग्रेटिट्यूड टू ओपन आवर आईज, to have everybody around us, like, still alive and kicking, to have all these amazing, like, things, to being alive in these possibilities. अगर हम वो मोमेंट से अगर हमारी शुरुआत करें और हमारी रात का एंड करें, सो वी विल सी थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म फॉर अस. रात को हम 6 7 8 घंटा सोते हैं. सो इफ वी सी, दैट विल मल्टीप्लाई अवर फीलिंग्स. अगर हम अच्छा सोच के सोते हैं 8 घंटे, दैट विल मल्टीप्लाई. So it is very important how we sleep and how we wake up, and that itself will play a huge part in the tipping point. Yes, Parati. You're on mute, huh, by the way, Parati. Yeah. I didn't speak. So what I was saying, the another thing my Nanaji used to say is that whenever you get up, you touch the floor, Bhumi Ma, thank it because you're gonna step on it. And they used to also say that before you step on that, you basically rub your hands together, palms together, and then you just put it all over your face, and then look at your luck rekha because you can change it. Like look at all your palm because you can change it, and then thank it, and like just like that's another way to feel love for yourself and your life. Great. Super. Yes, I think all elements, if we just thank. And yes, we are the creators. जहाँ देखे जो manifest करना चाहे, that is available. So thank you, Paridi. Thank you for sharing. These things, if we really put our love into it, do make a difference. So thanks for sharing. Yes, Shola. Uh, Yesterday I shared with you about gratitude. I said I'll take on gratitude and money and all. But I was looking at gratitude with my parents, and I got back with my brother and said thank you for all that he did for me. Wow. Wow. To Because doing, as such, me and my parents don't have any issues. But like Bhumi, you're aware of certain fights we're going through. So I said, fight ko chodo. Pehle to thank you for all that you contributed in my life. And I'm attending a seminar in Landmark. So there is a graduate event, and I invited them for that. And I'm going to share this also with one of my brother who likes such programs. So he can choose to come if he wants to. But wow. even sharing gratitude, I think the whole energy in the families will shift. I feel the shift. That is all that matters. The shift in is us. अगर हमने उनको कंट्रोल करना चालू किया ना, तो हम हाँ, शिफ्ट क्यों नहीं हुए? Oh my God, don't even get there. हाँ, No, हाँ. your business is how you feel. No matter what happens out, how you feel. And Mm. it's amazing, just on your second day, you committed to something and you acted on it and you're seeing the result and you're sharing it here also. So very, very grateful. It has probably enriched this session. It not probably, it has enriched this sessions also and probably pushed us to take more actions in our lives. So thank you for sharing, Chola, and creating that beautiful fragrance in your life. Thank you, Bhumi. And Thank you, everyone. Yeah. also just one thing, I used to think, मैं अपने parents के लिए I'm in such love for them. But unknowingly, sometimes in some areas, कुछ ना कुछ हमने express नहीं किया है, but वो रहता है. So we don't have to go looking for what we don't love. But yes, शायद वो एरिया में enough gratitude भी नहीं हुआ है ना, इसीलिए उसके अच्छे फल हमें नहीं मिल रहे हैं. So no matter what, I think Bena Masi in the initial days only said कि just रोज 5 gratitude for the parents changed her life. So जस्ट उनको बस प्यार दो, उनको वो हमारे सोर्स है, उसको नरिश करो, लाइफ विल चेंज. सो वेदर हमें समझे नहीं समझे, लाइक दे से मातृदेवो भव पितृदेवो भव, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस कि इफ वी स्टार्ट एज यस्टरडे परिधि सेड, तुम्हारे सामने जो भी है उसको तुम्हारी माँ समझो, डॉटर समझो. व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज वट एवर हम स्टोरी बनाए ताकि अंदर से प्यार बाहर निकले. सो इफ वी स्टार्ट सीइंग देम एज गॉड्स, we just worship them, we just send love, we just send devotion, we just send acceptance, that area will start changing. So no matter हमें ढूंढना भी नहीं है क्या है, but बस हम वहां पे ज्यादा love दे, ज्यादा nurturing दे,
we will see पूरी जिंदगी खिलेगी और खुलेगी. So it is 10:30. Thank you all for being here and being a part of this journey. We will still do the songs, we will still take the questions, but those who need to leave, we get that. And otherwise, whoever can stay, please stay back and we will take the questions and the song. Thank you. Yes, Masi. Bera Masi? भावना, जो अपने को ना नेगेटिव, कभी नेगेटिव विचार आते हैं कभी, और हम लोग को मालूम भी है करके कि ये नहीं आना, मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए, तो उसको मतलब कैसे पॉजिटिव में लाऊं कि, तो तभी मैं क्या करूं थोड़ा. हाँ, तो एक है कि हम नेगेटिव को फाइट नहीं कर सकते, पर उसको नेगेटिव, एक्चुअली मैं यहाँ पे जितनी बार उसको नेगेटिव बोल रही हूँ, समथिंग इन मी स्टॉप्स कि वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है. वो हमें बस बता रहा है कि ये एरिया में लाइट नहीं है. और हर इमोशन के पीछे एक नीड होता है. अगर मैं किसी पे गुस्सा हो रही हूँ तो मेरी एक नीड है जो पूरी नहीं हुई है. और अगर मैं वो नीड को वापस और डीप जाऊं ना, तो वो नीड आखिर लव और सेफ्टी तक ही आएगी. I'm feeling angry at somebody because somebody didn't do this to me. So what is my need? My need is to feel good. My need is to feel safe. You know, my need, like deep down, her need is coming to safety and love. तो या हम खुद को नेचुरली सेफ्टी और लव दे, नेचुरली बस लाइट ऑन करे. तो बेना मासी, I really don't know. I'm not an expert in this, so I don't know how to do it. But what works for me, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं एक्चुअली 5 मिनट जाऊंगी, मैं आंख बंद करूंगी, I will talk to the गुस्सा. Like, I'll feel it, I will let it come, I will thank it for being there, and I will ask, what do you need? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए जो नहीं मिला है? अगर अगर मैं आपको बुला रही हूँ और आप नहीं सुन रहे हो, तो मैं जोर जोर से बुलाऊंगी, मैं और जोर से बुलाऊंगी. सो गुस्सा भी काफी बार आ रहा है बिकॉज उस वो जो बोल रहा है वो हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो और जोर जोर से आ रहा है. तो सिंपली जब इमोशन आए, उसको भगाओ मत, उसको दबाओ मत, उसको एक्नॉलेज करो, उसको लेबल भी मत करो, उसको लव दो. इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट. सो कुछ भी आ रहा है, अक्नॉलेज, वैलिडेट कि हाँ ये है, कोई भी ये सिचुएशन में होगा, ये फील होगा, बट अब मैं इसके बारे में क्या करूंगी वो मेरे हाथ में. और उसको पूछो तुझे क्या चाहिए, क्या है जो मैं नहीं सुन पा रही हूँ, और वो सुनो. हम देखेंगे वो नेचुरली चीज ड्रॉप होने लगेगी, वो नेचुरली चीज ट्रांसफॉर्म होने लगेगी. उसकी जो नीड है उसको पकड़ो, और उसको 2 बार नीड में और डीप जाओगे ना, हर चीज की नीड इज लव एंड सेफ्टी. या देखो कैसे काम करता है. एनीथिंग वी ट्रूली लिसन टू, गिव अटेंशन ना, इट ट्रांसफॉर्म्स टू लव. और होगा. उससे भागोगे, उसको दबाओगे, तो उसके पेड़ आएंगे और उसके फ्रूट्स आएंगे. थैंक यू फॉर आस्किंग. थैंक यू. हाय गौरव, गुड टू सी यू. So today is Kachhi New Year, and in that, we can take next few minutes probably doing Garba or just enjoying, this vibe. So there's this beautiful movie, from Kutch, jahan pe there's a village jahan pe village is cursed and women are suppressed and, they don't have any expression. But again, life happens, things happen, and they have a chance to like reconnect back to their passion of Garba. And just with that change of feeling, how it changed not only that Gao ka destiny, but the destiny of everything and everybody around, and how it filled their hearts with joy. So inviting you all to tune into that energy and see however you would like to connect to this music. You want to sing, you want to dance, you want to just be with it, you want to tune into their vibe, you are invited to. So thank you all once again for being here, for being part of this journey. And a happy new year to all of us, because हर moment, हर second, हर day में वो new year, new vibe है. As the chapter was also saying, तुम इतने दिन चीजें करनी है वो मत करो. This moment, this day, one day at a time, one moment at a time, one task at a time. And we filled it with love. And we will see it will multiply back a lot of love in our lives. So thank you all. See you tomorrow and enjoy the song.